Good morning, students. It's me, Pankaj Malik, and we have decided that we will be discussing some topics of science together, you and me. So, let's begin with first chapter and first topic. Chapter 1 is food and nutrition. Your science is divided into 3 parts. One is life sciences, another is physical sciences, and third one are the chemical sciences. So we can say that there will be topics from 3 parts: physics, physical sciences; chemistry, chemical sciences; and biology, life sciences. So it is the basic knowledge required by any student who is willing to opt science and technology in future. So class 10 science is very important from various point of view. So first chapter is from life sciences part, that is food and human health. So let's begin, but before starting the topic, we must know some definitions, we must clear some concept, and these concepts are very easy concept, because food and human health. So what is food? Since your birth you are having your meals, breakfast, lunch, dinner, and variety of food. But if someone asks you define food, it becomes a little difficult. So I have written some definitions on your board to make it easy and convenient for you. भैया focus करना. Food. Food is something that humans and animals eat. Something that humans and animals eat is known as food, or any nourishing substance that is eaten, drunken, or otherwise taken into the body to sustain life. यानी कि जो कुछ हम खाते हैं, हम मतलब humans और animals, means all organisms, living beings, animals. Humans are also kind of animals. So जो कुछ भी हम खाते हैं, something that humans and animals eat is food, या anything nourishing substance that is eaten, drunk, or otherwise taken into body is known as food. It is necessary to sustain life. अगर हमें खाना नहीं मिले तो क्या होगा? We can't sustain our life. हमारा जीवन नहीं बचेगा. So to sustain the life, food is necessary. Next, health. What is health? Health is a broader concept. एक बहुत बड़ा concept है health. Health मतलब कोई दिखने में फिजिकली फिट है, आप उसे कोई काम करने को कहें वो कर दे, आप कहें दौड़ के जाओ वो सामान ले आओ, आपका क्लासरूम 3rd फ्लोर पे है, आप यहाँ से जाइए 1 मिनट में वापस भी आ जाइए. इट मीन्स कहेंगे सब कि अरे वाह, ही इज हेल्दी एंड फिट. बट हेल्थ क्या है? अगर किसी को कोई डिजीज नहीं है तो वो हेल्दी है? नहीं, दिस इज नॉट राइट. Health is a state of physical, mental and social well-being in which disease and infirmities are absent. हमारी बॉडी की वो कंडीशन जिसमें हम फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेल-बीइंग हैं, अच्छे हैं, ठीक हैं, और जिसमें 2 चीजें नहीं हैं, 2 चीजें एब्सेंट हैं, डिजीज एंड इन्फर्मिटी. ये एब्सेंट है, तब हम उसे कहेंगे हेल्दी पर्सन. एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ. अगर आप किसी को कहते हैं कि एक आदमी शरीर से बिल्कुल आपको स्वस्थ दिखाई देता है, ऑल ऑर्गन्स आर प्रॉपरली वर्किंग, ही इज वेरी गुड इन रनिंग, ही कैन लिफ्ट वेट मोर देन यू, लेकिन
आप उससे बात करें तो आपको पता चलेगा कि वो मेंटली फिट नहीं है, यानी कि आप उसे हेल्दी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि फिजिकली तो वो फिट है लेकिन मेंटली वो फिट नहीं है, तो वो हेल्दी नहीं हुआ। दूसरा एक पर्सन जो फिजिकली फिट है, बॉडी फिट है उसकी, मेंटली भी फिट है वो, लेकिन उसे ये नहीं पता कि सोशली कैसे बिहेव करना है। सो द सोशल एस्पेक्ट इज लैकिंग। सोशल एस्पेक्ट इज लैकिंग मीन्स सपोज कहीं पर कोई कैजुअलिटी हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, कोई इन टाइम डेथ हो गई, कोई ऐसी डेथ हो गई, कोई यंग डेथ हो गई जहां पर डेथ नहीं होनी चाहिए थी। तो अब वहां पर कोई एक पर्सन जाता है और वहां सब लोग रो रहे होते हैं, तो वो जाके कहता है अरे अरे क्या हो गया भाई, कि इनका एक ही बेटा था, जवान बेटा था, उसकी डेथ हो गई और ही इज नो मोर। तो वो आदमी फिजिकली फिट है, मेंटली भी फिट है, बड़ी अच्छी जॉब पे है, रेपुटेशन है उसकी सोसाइटी में, ही हैज हेल्थ एंड वेल्थ बोथ, लेकिन वो सच बोलता है, झूठ तो नहीं बोलता। वो कहता है तो क्या हो गया, मरना तो सबको ही है एक दिन, चलो चलो उठाओ इसको, रोना धोना बंद करो और लेके चलो इसका अंतिम संस्कार करते हैं। तो वहां बैठे सब लोग क्या कहेंगे, He has got mad, पागल हो गया है कि ये आदमी, क्या कह रहा है, रो क्यों रहे हो, सबको ही मरना है तो कल तुम भी मरोगे। अरे देखो पागल आदमी है, लेकिन क्या वो पागल है? नहीं, वो पागल नहीं है, ना वो बीमार है। He is physically fit and mentally also fit, but socially he is not fit. Socially he is not fit means उसको ये नहीं पता कि हमें सोशली कैसे बिहेव करना है। तो हमारी हेल्थ तीन एस्पेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट इज फिजिकल, सेकंड इज मेंटल एंड थर्ड इज सोशल। अगर इनमें से कोई एक भी एस्पेक्ट लैक होता है, कोई एक एस्पेक्ट अधूरा है, कम है, कमजोर है, तो हम उसे हेल्दी पर्सन नहीं कहेंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज न्यूट्रिशन। हम फूड लेते हैं और हम कहते हैं कि इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, इसमें टीवी पे बहुत सारे ऐड आते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड आते हैं, आप देखते हैं हॉर्लिक्स पिए, बूस्ट पिए, बॉर्नवीटा पिए, सेरेलैक खाएं, इसमें क्या है, न्यूट्रिशन है। अलग अलग कंपनी है अपने जूस बेचती है, पैक्ड जूस, वो कहते हैं इसमें न्यूट्रिशन है, आपको इसमें बॉडी फिट रहेगी आपकी, न्यूट्रिशन ले। तो व्हाट इज न्यूट्रिशन? So nutrition, the food we eat and the way it affects our health is nutrition. The food we eat and the way it affects our health. जो खाना हम खाते हैं और वो हमारी हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है, उससे हमारी हेल्थ इंप्रूव होती है या उससे हमारी हेल्थ में कमी आती है, दैट इज द न्यूट्रिशन। So once more I am going to read it for you. The food we eat and the way it affects our health is nutrition. This definition is important from the point of view of your various exam. It may be there throughout the year, it will be there in any of your exam. If not in board, then it will be in your various tests or half yearly exam. So learn it. Now the food which we are having in different meals, is it sufficient to meet all the requirement of body or not? It decides whether we are having the balanced diet or unbalanced diet or imbalanced diet. जो खाना हमने खाया क्या वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है या उसमें कोई कमी है? तो अगर वो फूड हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, इट मीन्स द फूड इज बैलेंस, मीन्स द डाइट इज बैलेंस। डाइट मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ फूड कंबाइंस इन अ मील। एक तो है खाना, एक है भोजन,
खाना मतलब एक चीज, रोटी खाई तो खाना हो गया, दाल हमने खाई तो खाना हो गया, लेकिन हमारी थाली में, हमारी प्लेट में या हमारे डाइनिंग टेबल पे दाल भी है, सब्जी भी है, चपाती भी है, सैलेड भी है, कर्ड भी है, कोई स्वीट भी है, तो फिर ये हो गया हमारा मील, हमारी डाइट हो गई। तो वो जो डाइट है, वो डाइट क्या बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड फूड है उस डाइट के अंदर। सो नाउ डेफिनेशन, व्हाट इज बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फूड? फूड और डाइट विच सप्लाई all the nutrients needed for our health। वो फूड या वो डाइट जो हमारी बॉडी की सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जरूरी है, वो कहलाता है बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट। नाउ unbalanced diet. Unbalanced diet means the food or diet consists of either too much or too little nutrients. Either too much or too little nutrients। वो फूड या वो डाइट जिसमें न्यूट्रिएंट या तो बहुत कम है या बहुत ज्यादा है। वो फूड या वो डाइट जिसमें न्यूट्रिएंट या तो बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, that is known as unbalanced diet। Unbalanced diet। So diet is of two types, balanced and unbalanced। Now malnutrition, ये एक ऐसा वर्ड है जो आप अक्सर सुनते होंगे। इसके डिफरेंट एड्स भी आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, न्यूज़पेपर में पोस्टर्स भी लगे रहते हैं, कैंपेन भी चलते हैं, आपको घर पे भी बताते रहते हैं पेरेंट्स, हम लोग यहाँ क्लास में बताते हैं, असेंबली में बताते हैं आपको। माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन मीन्स डेफिशिएंसी, कमी किसी चीज़ की, किसी न्यूट्रिएंट की कमी हमारी डाइट में, हमारे फूड में अगर कोई चीज़ कम रह जाती है तब हम उसे कहते हैं माल न्यूट्रिशन। सो माल न्यूट्रिशन, अब माल न्यूट्रिशन हमारे पास, हम यहाँ 3 तरह के माल न्यूट्रिशन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट माल न्यूट्रिशन इज विटामिन माल न्यूट्रिशन। नंबर 1 इट इज विटामिन माल न्यूट्रिशन। अब बात आती है विटामिन, ये वर्ड आप पढ़ते आ रहे हैं क्लास 3rd 4th से। क्या है विटामिन्स? विटामिन्स आर सम chemical components which are required in minute amount for proper functioning of our body physically and physiologically। वो केमिकल्स जो बहुत कम अमाउंट में हमें रिक्वायर है हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, उन्हें हम विटामिन्स कहते हैं। विटामिन्स आर ऑफ वेरियस टाइप, बट जनरली अप टू योर क्लास लेवल we will discuss only vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, though it is vitamin E, vitamin K also। Vitamin E and K are not in your syllabus, but I will tell you something about vitamin E and K also। Mainly in your syllabus there are 6 vitamins, there are 6 vitamins, rotate करो। So विटामिन डेफिशिएंसी, विटामिन की कमी से होने वाली डिजीज, किसी भी चीज की कमी से होने वाली डिजीज कहलाती है डेफिशिएंसी डिजीज। क्या कहलाती है बच्चों? डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज मीन्स किसी चीज की कमी से होने वाली डिजीज। The disease which are caused by the less amount of a particular food item in our diet। अगर हम बात करें विटामिन्स की माल न्यूट्रिशन में, पहली डेफिशिएंसी है हमारी विटामिन डेफिशिएंसी या विटामिन माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन रेफर्स टू डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी 2 तरह से होगी बच्चों, ये एक्सेस भी हो सकता है या imbalance in diet। malnutrition refers to deficiencies, excess और imbalance, 3 चीजें हैं इसमें। कम रह जाए, अगर जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उससे कम रह गया तो हो गई डेफिशिएंसी।
ज्यादा ले रहे हैं हम किसी चीज को जितने हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हो गया एक्सेस, या कभी हम कम ले रहे हैं और कभी ज्यादा ले रहे हैं, तो इन तीनों ही कंडीशन में मालन्यूट्रिशन होगा। मालन्यूट्रिशन होगा उस पर्टिकुलर चीज का, चाहे वो विटामिन हो, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो कोई और चीज हो, न्यूट्रिएंट्स हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मालन्यूट्रिशन रेफर्स टू डेफिशिएंसी, एक्सेस और इम्बैलेंस। डेफिशिएंसी मीन्स इफ यू आर टेकिंग अ पर्टिकुलर विटामिन इन लेस अमाउंट, तो कमी हो गई, डेफिशिएंसी हो गई। इफ यू आर गेटिंग इट इन मोर अमाउंट, तो ये एक्सेस हो गया। अब तीसरी चीज, कभी आप उसको कम लेते हैं और कभी बहुत ज्यादा ले लेते हैं अपनी डाइट में, तो वो हो गया इम्बैलेंस। सो मालन्यूट्रिशन रेफर्स टू डेफिशिएंसीज, एक्सेस और इम्बैलेंस इन डाइट। डाइट मीन्स फूड और न्यूट्रिएंट्स, और यहां पर हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं विटामिन की। सो विटामिन ऑल्सो यू हैव टू read, learn and write in your notebook these definitions. One of these definition you must get in your board exam for 1 mark at least. आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का कम से कम इसमें से क्वेश्चन आएगा, जो आज हम इस समय पढ़ रहे हैं, इसमें से 1 मार्क आएगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम राइटिंग हियर इंपॉर्टेंट. विटामिन डेफिशिएंसीज इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए बहुत जरूरी है आपको लर्न करना, ताकि आप लोग इन्हें याद रखें. और ये आपसे जनरल नॉलेज के लिए भी जरूरी है. आपको घर में खुद को भी इनका ध्यान रखना है और दूसरों को भी बताना है, ताकि सभी लोग हेल्दी डाइट लें, बैलेंस डाइट लें. विटामिन ए. विटामिन ए की कमी से सबसे जो कॉमन डिजीज होती है दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस. नाइट ब्लाइंडनेस इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है. नाइट ब्लाइंडनेस वो डिजीज है जिस डिजीज में डिम लाइट में अनेबल टू सी इन डिम लाइट और नाइट, या तो शाम के टाइम जब लाइट कम हो जाती है उस समय, और रात में कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें दिखाई देना बंद होता है. हिंदी में इसे रतौंधी कहते हैं. रतौंधी जो डिजीज होती है ये विटामिन ए की कमी से होती है. और इसके लिए हम लोगों को क्या, इसके सिम्टम्स क्या है? अनेबल टू सी इन डिम लाइट और नाइट, ये इसके सिम्टम है. अब हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं फिर भी. इसको दूर करने के लिए सबसे अच्छा सोर्स है विटामिन ए. विटामिन ए, कैरेट, आंवला, इन दोनों चीजों को खाने से, कैरेट स्पेशली, गाजर का मुरब्बा, गाजर का जूस या कच्ची गाजर सैलेड में, इसे खाने से विटामिन ए की कमी पूरी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस दूर हो जाती है. इसके लिए एक बहुत अच्छा और बहुत ट्रस्टेड तरीका है जो हम लोग घर में अपना सकते हैं. ड्यूरिंग द पार्चुरेशन ऑफ कैटल्स, जब गाय या भैंस उनकी डिलीवरी होती है, जब वो बच्चा देते हैं, तो उस समय जो मिल्क, फर्स्ट मिल्क होता है, वो येलो कलर का गाढ़ा दूध होता है जिसे हम खीस कहते हैं. लेकिन उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है कोलेस्ट्रम. मैं लिख रहा हूं यहां पर, आप याद रखें, कोलेस्ट्रम. इस कोलेस्ट्रम को अगर बिना उबाले हुए फर्स्ट प्रेगनेंसी का, जो गाय या जो भैंस फर्स्ट टाइम डिलीवरी जिसकी हुई, जिसने पहली बार बच्चा दिया है, उसका पहली बार का खीस अगर कोई पीता है तो दिस डिजीज इज क्योर्ड. देयर आर वेरियस एविडेंसेस एंड प्रूफ. ये इस बात से प्रूव हुआ है कि उसको पीने से, खीस को, पहली बार का जो फर्स्ट टाइम गाय या भैंस बच्चा देती है उसका खीस, कोलेस्ट्रम उसको कहते हैं, उसको पीने से रतौंधी काफी हद तक ठीक हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस. नेक्स्ट डेफिशिएंसी इज ड्यू टू थायमीन, विटामिन B1. अब आप यहां देख रहे होंगे, यहां पर कई चीजें लिखी हुई है, B1, B2, B3. B1, B2, B3 मीन्स विटामिन बी इज ऑफ डिफरेंट टाइप.
और अगर इनको आपने सुना होगा, देखा होगा, डॉक्टर जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको एक सिरप देता है पीने के लिए, एक शीशी होती है, उसके ऊपर वो कहता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब कई तरह की चीजें उसमें मिली हुई है। उस विटामिन, अकेला विटामिन बी नहीं है, उसमें विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, राइबोफ्लेविन है और कई सारी चीजें उसमें होती है, तो उसे कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स। तो हम बात करेंगे थायमाइन B1, इसकी कमी से होती है डिजीज बेरी बेरी जो डिजीज है, बड़ी कॉमन डिजीज है। इसमें क्या होता है, लो हार्ट बीट एंड वीक मसल्स एंड नर्व्स। मसल्स जो हमारी स्केलेटन को मूव कराते हैं, जो हमारी हड्डियों को मूव कराते हैं, उन्हें हम कहते हैं मसल्स, और जो हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं उन्हें हम कहते हैं नर्व्स। तो इसकी कमी से लो हार्ट बीट और मसल्स एंड नर्व्स ये दोनों ही वीक हो जाते हैं। नेक्स्ट इज राइबोफ्लेविन B3। इसकी कमी से जो डिजीज है, इस राइबोफ्लेविन का नेम आप याद रखें तो डिजीज का नेम खुद ही याद हो जाएगा, राइबोफ्लेविनोसिस। इसमें क्या होता है, ये जो हमारा माउथ है, ये तो फेस है, इसे फेस कहते हैं, ये माउथ है, ये ओपनिंग, और इसकी जो ओपनिंग की स्किन है जो थोड़ी मोटी है, इन्हें कहते हैं लिप्स, अपर लिप, लोअर लिप। तो हमारे लिप्स, माउथ के अराउंड जो स्किन है, ये स्किन, ये क्रैक आ जाते हैं, इसमें ये फटने लगती है, क्रैक्स अराउंड माउथ लाइनिंग्स एंड लिप्स। एंड सबसे इसमें जो प्रॉब्लम का कोज है वो है मेमोरी लॉस। आपने देखा होगा न्यूरोबायन नाम का एक कैप्सूल है जो अक्सर दिया जाता है, न्यूरोबायन में ये काफी हद तक होता है राइबोफ्लेविन, जो कि हमारी मेमोरी लॉस को दूर करता है। नाउ नंबर 4 नियासिन B3। पेलेग्राइड डिजीज है, इसमें ड्राई स्केल्स हो जाते हैं। ड्राई स्केल्स मतलब हमारी स्किन पे चकत्ते पड़ जाते हैं, ड्राई स्केल्स ऑन टंग एंड स्किन, जीभ के ऊपर और स्किन के ऊपर ड्राई स्केल्स हो जाते हैं। नाउ नंबर 5 एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड हमें जूसी सॉर फ्रूट से मिलता है, जो खट्टे और जूसी फ्रूट्स हैं, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, किन्नू। इस फैमिली के, सिट्रस फैमिली के जो भी फ्रूट्स हैं, वो अच्छा सोर्स है एस्कॉर्बिक एसिड का या विटामिन सी का। इसकी कमी से एक स्किन डिजीज होती है जिसे कहते हैं स्कर्वी। और इसमें सबसे प्रोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, हमारे जो गम्स हैं, ये टीथ जिसके अंदर, वो बोन जिसके अंदर टीथ पैक रहते हैं मजबूत, जिन्हें हम हिंदी में मसूड़े बोलते हैं, गम्स। तो ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स एंड स्पॉट ऑन बॉडी, स्किन पर निशान आ जाते हैं। नेक्स्ट इज कैल्सीफेरोल, विटामिन डी। इसकी कमी से जो डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज है, दैट इज रिकेट्स। इसमें क्या होता है, आपने कुछ बच्चे देखे होंगे जिनके घुटने अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, जैसे हमारी ये बोन्स है सीधी है, उसमें क्या होता है, ऐसे मुड़ जाती है बोन्स अंदर की तरफ, घुटने ऐसे, घुटने मिल जाएंगे और पैर यहां से ऐसे हो जाएंगे। तो इसमें दो डिफॉर्मिटीज आती हैं, इनवर्ड बेंडिंग ऑफ नी, घुटने अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, और बेंडिंग ऑफ लेग बोन्स, और पैरों की हड्डियां बाहर की तरफ मुड़ जाती हैं, घुटने अंदर और पैरों की हड्डियां बाहर। तो ये जो डिजीज है, ये डेफिशिएंसी डिजीज है और विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है। अब एक बार हम इसको क्विक रिवीजन ले रहे हैं। Food, something that humans and animals eat, or any nourishing substance that is eaten, drunken or otherwise taken into the body to sustain life is known as food. Health is a state of body in which all three aspects, physical, mental and social, are well.
nutrition. The food that we eat and the way it affects our health is known as nutrition. Nutrition provide us balanced or imbalanced diet. Thank you.